Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will learn class 4 English unit 3 chapter number 5 about run. Okay, here I will cover explanation of poem, new words and also the question answers. Okay, I will explain the new words meaning when it came across. Okay, let us read this poem first and then we will learn in detail. Okay, away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. The poem is written by Mary Daunt. So Mary Daunt is the poetress of this poem. Let us see what she want to tell us by this poem. Here we can see the title of poem is Run. That means poetress is telling us to run. In first stanza of this poem, she tells children to run away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Here poetress asks children to run away from the crowded city and into the open countryside. Countryside means villages और वी कैन से रूरल एरिया. ओके, जहाँ पे फार्म लैंड होती है. ओके, तो गांव की ओर भागने के लिए बोल रहे हैं. वेयर द चिल्ड्रन कैन सी अ क्लियर स्काई. व्हाई? बिकॉज इन रूरल एरिया देर आर नो टॉल बिल्डिंग्स, सो फील लाइक दे आर रनिंग इन टू द सन. ओके, तो यहाँ पोएट्रेस ने भीड़ भाड़ वाली जगह शहरों से दूर गाँव की ओर खुली धूप में भागने को बोला है. हियर रन इन द रेन ड्रॉप्स, run neath the trees, run little races with each little breeze. In second stanza of the poem, the poetress asks the children to run even when it is raining and enjoy the raindrops falling on you. Poetress का कहना है कि बारिश में भागना है और बारिश की बूंदें जो आपके बॉडी पर गिर रही है उनको एंजॉय कीजिए. Run neath the trees means to run in the shadow of the trees. पेड़ों की छांव में दौड़ने के लिए बोला है. Run little races with each little breeze. Breeze that means cool and gentle wind is called breeze. Okay. Okay. Here she tells us that to have competition of running with blowing wind. जो ठंडी ठंडी और धीमी पवन चलती है उसके साथ आपको रेस लगाने के लिए बोला है. ऐसा करने को क्यों बोला है? क्योंकि दिस विल मेक यू हैप्पी एंड कीप यू एनर्जेटिक. ऐसा करना आपके लिए बहुत आनंददायक रहेगा और आप एनर्जेटिक फील करोगे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. In this stanza of poem, poetress asks us to enjoy the running down a hill slope. पहाड़ी के नीचे और भागने के लिए बोला है. ऐसा करना आपके लिए बहुत रोमांचक रहता है. Okay, you can enjoy the thrill of running at hill slope. Okay, then she tell run up the lane. Lane means गलियां, जो छोटी छोटी गलियां होती है, नैरो लेन होती है. ओके ओके, सो she tell running up narrow lanes and run through the meadow, then run back again. Okay, run through the meadow. Meadow that means घास का मैदान जहाँ पे एनिमल्स जो है वो अपना चारा खाते हैं. ओके, चारा चरते हैं. So she tell us that run through the meadow full of grass and animals and then run back again. Okay, then she asks us to run back to their home. Okay, she tell here run back to our home again. Okay, okay, let's see here. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. Okay, in last stanza of the poem she summarized that by running all around you will be cheerful. Merry that means cheerful. Okay, by running you will be cheerful and happy all through the day. Okay, आप खुश रहेंगे और cheerful रहेंगे पूरे दिन के लिए. Run to the country, away, away. गांव की ओर भागो, दूर दूर. Okay, why she tell us to run? Because running will make you happy and strong to handle the challenges of life. Success will come easily to the children who adopt such a way of lifestyle. That's why she tell us to run. It will make us cheerful and happy all through the day. Okay, I hope you understood this poem. Okay, let's see new words meaning once again. Raindrops that means drops of rain. Okay, बारिश की बूंदे बोलते हैं. Neath. Okay, it's a short form of beneath. That means under something, under the tree. Okay, breeze that means a cool and gentle wind. Okay,
मंद मंद हवा जिसको बोलते हैं, ठंडी और मंद मंद हवा, उसको ब्रीज बोलते हैं। ओके, हिल साइड दैट मीन्स द साइड ऑफ अ हिल। ओके, मीडो मीन्स ग्रास लैंड, घास का मैदान। ओके, मैरी दैट मीन्स चीयरफुल, बी मैरी दैट मीन्स खुश रहना, चीयरफुल रहना। ओके, आनंदित रहना। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। What does the poem tell us to do? The answer is the poem tell us to run. Okay. Second question, write about the places where the poet want us to run. Okay, poet ने हमें कहाँ कहाँ दौड़ने के लिए कहा है, कौन से जगहों पे? तो away from the city, under the tree, okay, or neath the tree you can write, down the hillside, up the lane and through the meadow. Okay, इन जगहों पे पोएट ने हमें भागने के लिए बोला है। डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? वाई? यस, आई लाइक टू रन एंड प्ले बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, फ्रेश एंड एनर्जेटिक। ओके, रनिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। ओके, ऐसी 3 गेम के बारे में आपको बताना है कि जिसमें भागना पड़ता हो। ठीक है, तो देखो, गेम इन विच आई नीड टू रन आर फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। ओके, वॉलीबॉल में ज़्यादा नहीं भागना पड़ता लेकिन थोड़ा बहुत तो भागना पड़ता है। ओके, व्हेन यू रन फास्ट व्हाट डू यू फील इज हैपनिंग टू योर बॉडी? जब आप तेज दौड़ते हो तब आपको आपकी बॉडी में क्या फील होता है? व्हेन आई रन फास्ट माई हार्ट बीट्स बिकम फास्टर। ओके, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना। द एनर्जी लेवल ऑफ माई बॉडी ऑल्सो गेट इंक्रीज। ओके, बॉडी में आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। ओके, भागने से। से अलाउड, बीनीथ, ब्रिज, मीट, फियर, ईच, मिडो। लेट्स स्पेल। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड। राइट ई और ई इन ईच वर्ड। ओके, यहाँ पे जहाँ पे लेटर मिसिंग है वहाँ पे आपको ई का और ई का यूज करके फिलअप करना है। ठीक है, जहाँ पे ई आएगा वहाँ पे ई लिखना है और जहाँ पे ई आएगा वहाँ पे ई लिखना है। ओके, फिर आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखो, ट्रीज। ओके, TREES। ओके, प्लीज, PLEASC। टीच, TEASC। ओके, टीच, TEACH। स्लीप, SLEEP। बीप, BEEP। फिट, FEET। एंड मीट, MEET। ओके, तो जहाँ पे आपको डबल ई का यूज होता है वहाँ पे ई लगाना है और जहाँ पे ई का यूज आता है वहाँ पे ई करके फिलअप करके आपको पूरा वर्ड करना है। ओके, नाउ एड मोर वर्ड्स विथ ई एंड एंड पुट देम इनसाइड द बबल। यहाँ पे 2 बबल दिए हैं आपको, वहाँ पे ऐसे वर्ड लिखने हैं जहाँ पे 2 ई आते हो, मीन्स 2 टाइम्स ई आता हो और ई आता हो। ऐसे आपको स्पेलिंग लिखने हैं। तो देखो, ब्रिज, यहाँ पे 2 ई का यूज हो गया। टीथ, स्वीट। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, आप लिख सकते हो लेकिन आप याद रहे कि इसमें स्पेलिंग में डबल ई आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखिए ई, तो वीट, सीट, मीडो। ओके, तो यहाँ पे ई का यूज हुआ है। ओके, ये सब स्पेलिंग में। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, याद रहे कि स्पेलिंग में ई आना चाहिए। ओके, let's listen. Say the words aloud one by one. Follow the instructions and move your body accordingly. Okay, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो आपको अलाउडली स्पीक करने हैं और यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, मीन्स इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको बॉडी मूव करनी है। तो देखो, सोल्जर्स। ओके, मूव देम अप एंड डाउन। आपके जो सोल्जर्स है, ओके, तो उनको आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करना है। ओके, फीट, आपके जो फीट है तो उनको वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, तो फॉरवर्ड चलना है और बैकवर्ड चलना है। रन, फास्ट एंड स्लो। ओके, फास्ट दौड़ना है और स्लो दौड़ना है। हैंड्स, मूव देम लेफ्ट एंड राइट। ओके, हैंड्स को आपको लेफ्ट साइड मूव करना है एंड राइट साइड मूव करना है। ओके, नाउ जंप, होप, मार्च एंड टिपटोय। ओके, फिर आपको क्या करना है? जंप करना है, होप करना है, मार्च करना है, टिपटोय करना है। तो जंप और होप का तो मीनिंग आपको पता ही है। ओके, तो मार्च का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक तरह का ये वॉक ही है, जैसे मिलिट्री मैन चलते हैं। ओके,
शिस्तबद्ध जो चलते हैं, जैसे परेड में चलते हैं, एक तरह की चाल होती है ना, नियमित रूप से जो चलना होता है कदम ताल के साथ। ओके, इस तरह से उसको मार्च बोलते हैं। देन टिपटोई, टिपटोई मीन्स पंजों के बल चलना। ओके, आपकी एड़िया जो है वो आप ऊंची कर लो और जो पंजे है, जो उंगलियों का जो भाग होता है, उनके बल पर आपको चलना है। ठीक है, इसको टिपटोई बोलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द ऑपोजिट पेज। ओके, बुक के ऑपोजिट पेज में जो पिक्चर दिए हैं, देखो ये सब, वहां पे आपको देख के ये क्वेश्चन के आंसर फिलअप करने हैं। ठीक है, देखो कि एग्जाम्पल के तौर पे एक दिया है, व्हाट इज हैपनिंग इन पिक्चर 5। ओके, पिक्चर 5 देखते हैं, पिक्चर 5 में क्या हो रहा है। ठीक है, द गर्ल इज डिविंग इन टू द वाटर। ओके, हमने देखा। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। मोहन जो है वो क्या प्रैक्टिसिंग कर रहा है पिक्चर 4 में। लेट्स सी। ओके, सो वी कैन राइट देयर, मोहन इज प्रैक्टिसिंग टू जंप। ओके, वो जंप करने की प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, सो हियर वी राइट ही इज प्रैक्टिसिंग टू जंप। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3। ओके, अनिल और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो पिक्चर 3 में क्या पुल कर रहे हैं। देखो ये अनिल और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो पिक्चर 3 में क्या पुल कर रहे हैं। सो वी कैन राइट देयर, अनिल एंड हिज फ्रेंड पुलिंग रोप ऑन बोथ द एंड्स। ओके, so let's write there, Anil and his friend are pulling a rope on both the ends. Okay, यहाँ पे pulling आपको नहीं लिखना है, you just write Anil and his friend pulling a rope on both the ends. Okay, sorry for this, I just make it correct. Okay, let's see next, where are the boats racing in picture 2। पिक्चर 2 में देखते हैं कि वहाँ पे बोट की रेसिंग कहाँ पे हो रही है। तो we can write that boats are racing in river water। okay, on river water। देखो the boats are racing in the river water। okay, river water पे ये रेसिंग कर रही है बोट्स। okay, what are the boys doing in picture 1। okay, पिक्चर 1 में जो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं। okay, so we write there, the boys are running on the ground। okay, the boys are running on the ground। what are the girls doing in picture 6। पिक्चर 6 में जो गर्ल्स है वो क्या कर रही है। दे आर स्विमिंग इन दी पूल। ओके, सो वी राइट देयर, दे आर स्विमिंग इन दी पूल। ओके, क्वेश्चन 2, नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर। ओके, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपने पिक्चर में देख के आंसर लिखे। ओके, अब आपको क्या करना है, पिक्चर को देख के आपको वन मोर क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे दिए हैं, इनके अलावा राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर। ओके, जहाँ पे पिक्चर दिया है वहाँ पे स्पेस भी दी है पिक्चर के नीचे, वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन लिखना है। यूज हाउ मैनी, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ, वाई टू मेक क्वेश्चन। ओके, आप ये सब हाउ मैनी का यूज कर सकते हो क्वेश्चन बनाने के लिए, व्हाट आर का यूज कर सकते हो, वेयर आर का यूज कर सकते हो, वेयर इज का, व्हाट इज का, ओके, हाउ का, वाई का, ये सब है। ये इंट्रोगेटिव्स बोलते हैं जिससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है जिससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इनका यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो देखो ये जो पहला पिक्चर है उनका क्वेश्चन हम इस तरह से बना सकते हैं कि हाउ मेनी बॉयज आर रनिंग। ओके, कितने बॉयज भाग रहे हैं पिक्चर 1 में। ठीक है, हम इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकंड पिक्चर को देख के हम इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ मेनी बोट्स आर सेलिंग ऑन वाटर। ओके, ऐसा नहीं कि आप यही बना सकते हो, आप बहुत सारे और भी क्वेश्चन बना सकते हो। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर इन वन बोट। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे और भी क्वेश्चन बना सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट, ये जो थर्ड पिक्चर है उसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। ओके, ये पिक्चर को देखते हुए आप ऐसा लिख सकते हो, वाई ही प्रैक्टिसिंग टू जंप। ओके, मोहन इज प्रैक्टिसिंग टू जंप, वी ऑल नो। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो, वाई ही प्रैक्टिसिंग टू जंप। ओके, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, वाई सी डिविंग इन टू दी वाटर। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर यहाँ पे पिक्चर 6 में हाउ मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग। ओके, इस तरह से बहुत ही क्वेश्चन आप बना सकते हो। यहाँ पे जो दिया है हाउ मेनी, व्हाट आर, वेयर आर, व्हाट इज, वेयर इज, हाउ, वाई, ये सब का यूज करते हुए आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हो। आप अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे
और क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आपकी खुद की स्किल डेवलप होगी, ओके। तो यहाँ के साथ आपका ये जो पोएम वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ओके। प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी टू टीच ट्यूटोरियल चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज and press the bell icons for getting notification of upcoming videos. Thank you.